संसद का सत्र चल रहा है और रोज हंगामे की भेंट पूरा का पूरा दिन निकल जा रहा है। हमारे साथ बलबीर सिंह संत सीचेवाल साहब हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद वरिष्ठ नेता। सर, जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है संसद के भीतर, किसी भी मसले पे सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी भी पार्टी और तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो लगातार स्पीकर सभापति महोदय से कह रहे हैं कि समय दिया जाए। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है और भी कई सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही। क्या कहें? क्योंकि विरोधी धिर ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0 ਓਵਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ 0 ਓਵਰ 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ 1 ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ 0 ਓਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜੋ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। MSP ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 2300 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 400 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਸੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 10-12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਓਵਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। क्या लगता है आपको? क्या सरकार, अब तो किसान ये कह रहे हैं कि हम बिना ट्रैक्टर के पैदल 100 के जत्थे में आएंगे, क्यों नहीं आने देना चाहते? तो समझ नहीं आ रही। पहले तो बोलते सीखे कि एक ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके आ रहे, इनके पास ये है, इनके पास वो है। आज तो 101 किसान का जत्था है, उनको वो भी उनमें बुजुर्ग है ज़्यादा, वो आगे होके उनकी अगुवाई कर रहे हैं, किसान आगू अगुवाई कर रहे हैं। सो उनको भी वो जो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, 15 से अधिक किसान हॉस्पिटल में दाखिला। ये प्रदर्शन करना संवैधानिक हक है, दिल्ली जाना कोई अपराध है।
जो अवस्था जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं है उससे ज़्यादा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर हुआ। जो ये एक लोगों, किसानों और देशवासियों के अंदर, पंजाब के लोगों के अंदर एक नाराज़ता है सरकार के प्रति। सरकार को आगे आना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए, उनका जो भी हल है वो निकालना चाहिए, किसानों को सेटिस्फाई करना चाहिए। सीचेवाल साहब, एक अलग मुद्दा है, आप पानी पर्यावरण को लेकर लगातार काम करते रहते हैं। एक बूढ़ा दरिया को लेकर क्योंकि पंजाब में पानी की बहुत समस्या है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है, उसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि लगातार हम 25 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं। पवित्र काली बहिंग से काम शुरू किया था, वो साफ़ होगी, उनका पानी पी सकते हैं। और पूरे भारत में एक पहली नदी है जो पोल्यूट होकर अब साफ़ सुथरा पानी बह रहा है। उसके सारे ट्रीटमेंट प्लांट लग गए, गाँव के जो गंदे पानी उनमें गिरते थे अब वो खेती को लग रहे हैं। सो इसी तरह चिट्टी बही, काला संगा ड्रेन, ये हमारे मुद्दे थे। काला संगा और बुढ़ा दरिया एक गंभीर, जो जिसको बुढ़ा गंदा नाला बनाया वो बुढ़ा दरिया था। वहाँ भी गुरु नानक पातशाह आए, वहाँ लोग स्नान करते थे। वह जब से विकास की बात शुरू हुई वो उनको बुढ़ा गंदा नाला बना दिया। सो उनके पास जो पिछली सरकारों ने लगातार सतलुज एक्शन प्लान बना, पता नहीं कितना पैसा उस पर बर्बाद हुआ पर आउटपुट नहीं आई। अब उनके बहुत सारे काम हो चुके हैं और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी है 650 MLD है और 800 MLD तक प्रबंध कर चुकी है सरकार। सो उसके लिए एक कोर्ट में केस पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ। एक पंप स्टेशन जिसमें पानी ट्रीटमेंट प्लांट पर जाना, वो 225 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट है पर उसमें पानी 100 MLD जा रहा है। सो वो पंप का मजबूरी है। 2 साल हो गए, हम सरकार से भी बात कर रहे हैं, हम विभाग से भी बात कर रहे हैं। यदि कोर्ट का मसला नहीं हल होता तो उसका अल्टरनेटिव बदल होना चाहिए, पानी तो ट्रीटमेंट प्लांट में जाए। यदि वो हल होता तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पानी बंद हो जाएगा। दूसरा है इंडस्ट्री में हमने जब से 2009 से अब हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर रहे हैं, हमने 31 जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनके कमिश्नर और उनके प्रधानों पर कोर्ट में केस भी दाखिल करवाए थे। पिछली सरकार ने उनको वापस ले लिया। सो अब भी जो है इंडस्ट्री में एक 50 MLD, एक 40 MLD और एक 15 MLD, इतने ट्रीटमेंट प्लांट इंडस्ट्री के लग चुके हैं। पहले वे कोई नहीं था। एक ट्रीटमेंट प्लांट 5 MLD इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री का लग चुका है। हाँ, इंडस्ट्री चीटिंग करती है, उनको रोकना हमारा सरकार का फर्ज बनता, पोल्यूशन कंट्रोल का फर्ज बनता, उसको रोका जा सकता यदि महकमा काम करे। हमारा तो है कि जब हमने काम कर दिया, थोड़ा सा काम रह रहा तो उस पर क्यों हम ये देरी हो रही है, ये देरी नहीं होनी चाहिए थी। हम सरकार के पास भी मुद्दा उठा रहे हैं, प्रशासन के साथ भी, कि ये मसले का हल होना चाहिए। लोगों का साफ पानी उनका हक का, साडा फंडामेंटल राइट है, जीने का हक सानू कुदरत ने भी दिया, संविधान ने भी दिया, उनका हम जीने का हक नहीं खो सकते। ये हम इस मुद्दे पर कायम हैं और इसी पर आने वाले समय में भी काम करते रहेंगे। बलबीर सिंह सीचेवाल साफ तौर से कहते हैं शुद्ध पानी पीना, ग्राउंड वाटर साफ हो, ये सब जो है एक मौलिक अधिकार है और इसके लिए लगातार वो काम जारी रखेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली।